Good afternoon, dear students. Now I am going to continue my chapter Mukesh Starts a Zoo. Now, see on page number 67, there was also a duck that did not seem to belong to anyone. Now, in that zoo, there was one duck also, and a small cow that had stayed in on its own. And there was one cow also that was straying means moving from one place to another. The star attraction was the parrot, and there was one parrot also, which was the star attraction of the parents and the spectators, as it could recite three different prayers over and over again. And why it was the star attraction of the spectators? Spectator means that people who were watching the zoo. And parrot was the star attraction. Why? Because it was reciting three different prayers again and again. It was soon surrounded by a group of admiring parents, all of whom wished they could have a parrot who could pray. Now, all the parents and spectators who were coming there to see the zoo, they were wishing that they could have this parrot, this type of parrot who could pray, or this parrot, or rather say their prayers for them, or that parrot say prayers for them. Oddly enough, Koki's grandmother had chosen that day for visiting the temple. Now, Koki's grandmother is having that parrot, and on that day, the day on which they have to take that parrot, they have to take parrot. On that day, Koki's grandmother went to temple. So she was unaware of the fuss that was being made of her pet, or even that it had been made an honorary member of the zoo. So Koki's grandmother didn't know about the program which they have made to keep her parrot in the zoo. Teju had convinced himself that she wouldn't mind, and Teju thought that her grandmother would not mind about this. Now I want to tell you in Hindi also that in that zoo, उस zoo में एक डक थी और एक काऊ भी थी, लेकिन उसमें जो पैरट जो था वो एक स्टार अट्रैक्शन था। मीन्स सब लोग पैरट को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे थे। क्यों लाइक कर रहे थे? क्योंकि वो पैरट जो था वो थ्री डिफरेंट प्रेयर्स को बार बार रिपीट कर रहा था। और इट वॉज सून सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ एडमायरिंग पेरेंट्स, और वहाँ पर पेरेंट्स जो थे वो उस पैरट की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, और सब लोग ये विश कर रहे थे कि ये पैरट जो है ये उनके लिए प्रेयर करे, और रादर से देयर प्रेयर्स फॉर देम, और या वो उनके लिए प्रेयर करे। ऑडली इनफ कोकीज ग्रैंडमदर, और ऑडली जो थी वो कोकी की ग्रैंडमदर थी, और वो पैरट उनका था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये पैरट जो है ये वो लोग जू में रखेंगे। जिस दिन उनको इसको जू में रखना था उस दिन कोकी की ग्रैंडमदर मंदिर गई थी, और तेजू हैड कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट शी वुडंट माइंड, और तेजू ने को ये था कि उसकी ग्रैंडमदर जो है वो माइंड नहीं करेंगी। While Mukesh and Teju were escorting visitors around the zoo, lecturing them on wild dogs and wild asses, Koki and Dolly were doing a brisk trade at the ticket counter. जब मुकेश और तेजू जो थे वो विजिटर्स को जू के बारे में बता रहे थे, उन्हें गाइड कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे वाइल्ड डॉग्स के बारे में, वाइल्ड एसेस के बारे में, उस समय कोकी और डॉली जो थे वो लोग टिकट काउंटर पर टिकट सेल कर रहे थे। दे हैड कलेक्टेड अबाउट 10 रुपीज़, उन्होंने 10 रुपीज़ कलेक्ट कर लिए थे, एंड वर होपिंग फॉर येट मोर, और उम्मीद कर रहे थे कि अब इसी से भी ज़्यादा वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन देयर वॉज अ डिस्टर्बेंस इन द इनक्लोजर्स, लेकिन उसी समय इनक्लोजर में डिस्टर्बेंस हो गई। द ब्लैक डॉग विद येलो आईज हैड फाइनली मैनेज टू डिग हिज वे आउट ऑफ हिज केज।
और जो ब्लैक डॉग था, इसकी येलो आइज़ थी, उसने फाइनली ये मैनेज कर लिया था कि वो जो है अब इस पिंजरे से बाहर निकलेगा और वॉज बिजी ट्राइंग टू डिग हिज वे इनटू द रैबिट्स कंपार्टमेंट, और वो रैबिट के कंपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा था। द रैबिट वॉज रनिंग राउंड एंड राउंड इन पैनिक स्ट्रिकन सर्कल्स, और रैबिट जो था वो डर के मारे गोल गोल घूम रहा था। मीनवाइल द डोंकी had finally snapped the rope that held it and braying loudly, और डोंकी जो था उसने भी अपनी रस्सी तोड़ ली थी, scattered the spectators and made for home। उसके बाद उस डोंकी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और स्पेक्टेटर्स जो थे वो सब स्कैटर्ड हो गए। स्कैटर्ड मीन्स इधर उधर फैल गए या इधर उधर हो गए। एंड मेड फॉर होम, और अपने घर की तरफ जाने लगे। कोकी वेंट टू द रेस्क्यू ऑफ अ रैबिट, कोकी जो थी वो अपने रैबिट को बचाने के लिए गई। एंड सून हैड इट क्रैडल्ड इन हर आर्म्स, और जल्दी से उसने अपने आर्म्स में उसको उठा लिया। द डॉग नाउ टर्न्ड हिज अटेंशन टू द डक, अब डॉग का ध्यान जो था वो डक की तरफ जाने लगा। द डक फ्लू ओवर द पैकिंग केस, और डक जो थी वो भी डर के मारे अपने पिंजरे के अंदर घूमने लगी। वाइल द डॉग लैंडेड इन इट स्कैटरिंग लिजर्ड्स इन ऑल डायरेक्शंस, और जो लिजर्ड्स जो थी वो भी डर के मारे सब इधर उधर डायरेक्शंस में फैलने लगी। इन ऑल दिस कन्फ्यूजन नो वन नोटिस दैट द डोर ऑफ द पैरट्स केज हैड स्लिप्ड ओपन, लेकिन इस सब कन्फ्यूजन में किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि जो पैरट के पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खुल गया था। विद अ स्क्वैक एंड अ whir of wings, the bird shot out of the cage and flew off into a nearby orchard. With a squawk, squawk means unpleasant voice, ऐसी आवाज़ जो सुनने में अच्छी ना लगे। And a whir of wings, whir means जब कोई बर्ड किसी एक पिंजरे के अंदर मूव करती है तो उसके पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है, ठीक है। द बर्ड शॉट आउट ऑफ द केज, और वो जो पैरट जो था वो केज से बाहर आ गया। एंड फ्लू ऑफ इनटू अ नियर बाय ऑर्चर्ड, और पास में जहाँ पर फ्रूट्स लगे थे वहीं पर वो किसी पेड़ के ऊपर चला गया। द पैरट्स गॉन, shouted Dolly, and almost immediately a silence fell upon the assembled visitors and children. डॉली ने शोर मचाया कि पैरट जो है वो चला गया। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली अ साइलेंस फेल, और एकदम से वहाँ पर साइलेंस हो गया। जो विजिटर्स थे वो भी, जहाँ वहाँ पर जो असेंबल हुए थे विजिटर्स और चिल्ड्रन, वो लोग भी सब शांत हो गए। इवन द डॉग स्टॉप्ड बार्किंग, और डॉग ने भी चिल्लाना बंद कर दिया। ग्रैनी स्प्रिंग पैरट हैड एस्केप्ड, ग्रैनी का जो पैरट जो था, जो प्रेयर करता था, वो बचकर यहाँ से निकल गया। हाउ कुड दे पॉसिबल फेस हर, तेजू सोच रहा था कि किस तरह से वो अपनी ग्रैंड मदर को फेस करेगा, क्योंकि वो पैरट ग्रैंड मदर का था। तेजू वंडर्ड इफ शी वुड बिलीव हिम इफ ही टोल्ड हर इट हैड फ्लोन ऑफ टू हेवन। तेजू ये परेशान हो रहा था सोचकर कि क्या उसकी ग्रैंड मदर इस बात पे विश्वास करेगी कि उनका पैरट जो है वो हेवन में चला गया। कैन एनीवन सी इट, ये आस्क्ड टीयरफुली, क्या किसी कोई, कैन एनीवन सी इट, क्या कोई जाकर देख सकता है, ये आस्क्ड टीयरफुली। तेजू की आंखों में आंसू आ रहे थे और रोते हुए वो बोला कि कैन एनीवन सी इट, क्या कोई उसको देख सकता है। इट्स इन द मैंगो ट्री सेड डॉली, डॉली ने कहा वो मैंगो ट्री के अंदर है। इट वोंट कम बैक, अब वो वापस नहीं आएगा। द क्राउड फेल अवे, भीड़ जो थी वो वहाँ से ख़त्म हो गई थी। अनविलिंग टू शेयर एनी ऑफ द ब्लेम व्हेन कोकीज ग्रैंड मदर केम होम एंड डिस्कवर्ड व्हाट हैड हैपन। अब गोकी की जब ग्रैंड मदर घर आई तो उन्होंने किसी के ऊपर किसी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगाया। एंड डिस्कवर्ड व्हाट हैड हैपन, लेकिन वो खुद ये
खोजने की कोशिश कर रही थी कि क्या हुआ। What are we going to do now? asked तेजू। अब तेजू ने कहा कि अब हम क्या करेंगे। Looking to कोकी for help, अब वो कोकी की तरफ देख रहा था कि शायद कोकी उसकी हेल्प करे, बट कोकी वॉज टू अपसेट टू सजेस्ट एनीथिंग। कोकी जो थी वो खुद बहुत परेशान थी, वो इस हालत में नहीं थी कि वो कोई सजेशन तेजू को दे। मुकेश हैड एन आइडिया, लेकिन इतने में ही मुकेश को एक आइडिया आया। वो बोला, आई नो, ही सेड, वी शैल गेट अनदर वन। उसने कहा, अब हम ऐसा करेंगे कि एक दूसरा तोता लेकर आएंगे। हाउ? उसने कहा, कैसे? वेल, देयर्स द 10 रुपीज़ वी हैव कलेक्टेड। मुकेश ने कहा, हमारे पास 10 रुपीज़ हैं जो हमने कलेक्ट किए हैं। वी कैन बाय अ न्यू पैरेट फॉर 10 रुपीज़। उन 10 रुपीज़ का हम एक नया पैरेट ले सकते हैं। वोंट ग्रैनी नो द डिफरेंस? आज तेजू ने कहा, क्या ग्रैनी को इसका डिफरेंस नहीं पता चलेगा? ऑल दीज हिल पैरेट्स लुक अलाइक, सेड मुकेश। मुकेश ने कहा कि जितने भी हिल पैरेट्स होते हैं ये सब एक से लगते हैं। सो टेकिंग द केज विद देम, they hurried off to the bazaar, where they soon found a bird seller who was happy to sell them a parrot not unlike Granny's. अब मुकेश पिंजरा लेकर गया और उसने वो एक पैरट सेलर के पास गया। पैरट सेलर ने उसको एक पैरट दिया। वो देखने में बिल्कुल सेम लग रहा था जैसा कि उसकी ग्रैनी का वो पैरट था। ग्रैनीज, ही एश्योर्ड देम इट वुड टॉक। और उस पैरट सेलर ने ये श्योर किया कि ये पैरट ज़रूर बोलेगा। इट लुक्स लाइक योर ग्रैंड मदर्स पैरट, सेड मुकेश ऑन द वे होम। और जब रास्ते में घर जा रहे थे तो मुकेश ने कहा तेजू से कि ये पैरट बिल्कुल तुम्हारी ग्रैंड मदर के पैरट की तरह लग रहा है। बट कैन इट प्रे? लेकिन क्या ये प्रेयर कर पाएगा? तो ऑफ कोर्स नॉट, सेड कोकी। कोकी ने कहा, नहीं, ये प्रेयर नहीं कर पाएगा, बट वी कैन टीच इट, लेकिन हाँ, हम इसको सिखा सकते हैं। कोकीज ग्रैंड मदर हु वॉज शॉर्ट साइटेड, कोकी की ग्रैंड मदर शॉर्ट साइटेड थी। डिड नॉट, शॉर्ट साइटेड मीन्स एबल टू सी क्लोज थिंग, कि वो पास की चीज़ें देख सकती थी लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकती थी। डिड नॉट नोटिस द सब्स्टिट्यूशन, कोकी की ग्रैंड मदर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके जो पहले पैरट उनके पास था उसकी जगह पर अब दूसरा पैरट रख दिया गया। बट शी कंप्लेन बिटरली, लेकिन उसने ये कंप्लेन किया उन्होंने दैट द बर्ड हैड स्टॉप्ड रिपीटिंग प्रेयर्स, कि बर्ड ने अब प्रेयर्स को रिपीट करना बंद कर दिया है। एंड वॉज इंस्टेड मेकिंग रूड नॉइसेस, और अब वो क्या करता है, बहुत ही तेज से शोर मचाता है। एंड इवन स्वेयरिंग ओकेजनली, और कभी कभी वो बैड वर्ड्स भी यूज करता है। तेजू सून रेमेडिड दिस सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। तेजू ने सोचा कि अब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। एवरी मॉर्निंग ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पैरट्स केज, हर रोज वो पैरट के पिंजरे के सामने खड़ा हो जाता था। एंड रिपीटेड ग्रैनीज प्रेयर, और ग्रैनी की जो प्रेयर थी उसको वो बार बार रिपीट करता था। विद इन अ फ्यू वीक्स, थोड़े ही हफ्तों में, द बर्ड हैड लर्न टू रिपीट वन ऑफ दैम, तो बर्ड ने एक प्रेयर को रिपीट करना सीख लिया। ग्रैनी वॉज हैप्पी अगेन, अब ग्रैनी फिर से बहुत खुश थी। नॉट ओनली बिकॉज हर पैरट हैड स्टार्टेड प्रेइंग वंस मोर, बट ऑल्सो बिकॉज तेजू हैड स्टार्टेड प्रेइंग थ्रू। अब ग्रैंड मदर और ग्रैनी वो इसलिए खुश नहीं थी कि उनका पैरट ने फिर से प्रेयर करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो इसलिए खुश थी कि तेजू ने भी प्रेयर करनी शुरू कर दी थी। थैंक यू, एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज रस्किन।